हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो से आपको सलाम पेश करता है। मेरे भाई, आप कैसे हैं? हमने एक जो सिलसिला शुरू किया बाइबल स्टडी का, और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोगों ने उसको बहुत सराहा एंड इट्स बिकमिंग सो पॉपुलर। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि लोगों के अंदर जो कलाम की एक भूख और प्यास है, बाइबल टीवी जो है उसको पूरा कर रहा है। आज हम आपके लिए एक नया मजमून लेकर आए हैं। जैसे कि हमने आमदसानी के मजमून को 2 सेशन में उसको कवर किया, आज हम एक नया मजमून आपके लिए लेकर आए हैं और द सब्जेक्ट इज अबाउट द जजमेंट, अदालत के बारे में। खुदावंद की जो अदालत है उसके बारे में है। एंड आई होप यू विल ब्लेस बाय दिस सब्जेक्ट। सो बिफोर आई विल स्टार्ट दिस Bible study, I would like to read from this devotional book of wonderful man of God, David Jeremiah. This book name is Sanctuary. ये मेरी devotional book है, इसमें से मैं ये चंद जो खास बातें हैं उनको आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। The theme of this text is errors in judgment. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. दूसरा क्रंथियों का 5वां उसकी 10 आयत से। We all must appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. And he explained that the judgment seat of Christ is not about the judgment for your sin. The Bible tells us that judgment already took place at the cross of Jesus Christ. There is nothing anyone can ever do to you about your sin, because God did it to his Son in your behalf. Christ was condemned for us. That is what we read in Galatians chapter 1 verse 4. Who gave himself for you, for our sins, that he might deliver us from this present evil age. One of the most commonly asked questions about this is, how can someone has his sins forgiven and still have the world's reviewed at the judgment seat of Christ? Forgiveness is about justification, while rewards are about the things we do as justified people. They are not works which are done for justification, because each believer must stand before the judgment seat of Christ. We have no right to judge the work of other believers. We do not even know the reward we are going to receive. So how in the world would we know what rewards anybody else would receive? We do not know enough about anyone else's motive of heart or faithfulness to know what they would even deserve. And I promise you, when it all comes out, there will be a lot of surprises. Let us pray. Living God, Heavenly Father, we give you praise. We give you thanks. We worship you. We honor you, because you are our Savior. You are our Redeemer. We give you thanks for your wonderful promises.
We give you thanks that you are the perfect judge. Heavenly Father, as today we are going to discuss this subject about judgment, we understand that we got the limited mind and limited thoughts. We need your Holy Spirit. So empower us, guide us, inspire us, that we may understand your wisdom. Heavenly Father, I ask your blessing upon your people, those who are with us from the different countries, from the different areas. Please be with us and help us that we may glorify your name. In Jesus' name we ask this. Amen. What's a beautiful, beautiful text this is, and I'll just keep it for further meditation. हाँ जी, इससे पहले कि हम अपनी बाइबल स्टडी की जानब मज़ीद इस पे थोड़ा सा और गौर करें, just want to share a few thoughts about Bible TV Global, the people, those who are first time watching this channel. So there are so many ways and means you can watch this channel, Bible TV Global. It's a worldwide available. Bible TV Global is available on Roku TV, YouTube 24/7, Amazon Fire Stick, and nowadays, by the way, it's a good news that very good deal is offered by the Amazon, so you can buy this stick, and it's very, very good. There's so many channels on this Amazon stick. You can just fix it with your USB port, and you can watch all these channels. Apple TV, that's a small device, and this is also not very expensive nowadays. The channel is also available on the PMI, which is Asia Set 7 channel in Pakistan, and it's also available on Jadoo Box, Jadoo TV, and Facebook Live 24/7. And it's a free app on Apple and Android mobile phones, so you can watch 24/7 on these apps, Bible TV Global. Apart from that television, there is the Bible Readers Fellowship. Every Saturday in the evening at 7 o'clock we are having the Bible study, and nowadays we have started the Gospel of Matthew. So you are welcome to join us in this Bible Readers Fellowship. It's a very good group. I hope you will be blessed by this Bible study. So you're welcome to join us on this Saturday at 7 o'clock, and we will go through that Sermon on the Mount. Then we are having Sunday services. 10:30 we are worshiping in English, and these services are online, available on the same channels, on the Facebook and the YouTube and Bible TV. And at 2 o'clock we are worshiping Urdu and Hindi. तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप उर्दू हिंदी पंजाबी में बात करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन सर्विस आप उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं. As I mentioned that recently we were discussing about the second coming of Christ. So there are different subjects relating to this eschatology, which is a subject about the second coming of Christ. So today we are going to discuss about the judgment, which is a very good subject, and I hope you will enjoy this study. The return of Jesus Christ and the judgment. खुदा मसीह का दोबारा आना और अदालत, ये हमारा आज का थीम है. And as you know that there are so many brothers and sisters, those who are watching this program, and they cannot understand Urdu and Punjabi language. So for the sake of these viewers, I will have to be bilingual. So please bear with me. And in the same way, I would like to request all the English viewers, because the large Indian Pakistani community, they are watching this channel. So for the sake of this community, I have to be bilingual, and sometimes I'm sharing some word in Urdu language. But I promise that very soon we are starting these two different studies in English and Urdu. तो उन बहन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो उर्दू में इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कि बहुत जल्द हम उर्दू में सिर्फ जो प्रोग्राम उनको करेंगे और इंग्लिश में अलग से करेंगे, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिमांड अबाउट द इंग्लिश टीचिंग. सो डेफिनेटली वी विल स्टिक विद दैट. अभी हम खुदाम के पाक कलाम की जानिब बढ़ेंगे, and our text today is Matthew chapter 25
verse 31 to 46. The Gospel of Matthew, chapter 25, verse 31 to 46. O Lord Jesus Christ, King of Universe. जी, और ये भी हमारे लिए एल्डर अकील साहब प्लान फरमाएंगे। मत्ती उसका 25 बाब 31 आयत से लेकर 47 आयत तक। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25 बाब 31 से 46 आयत तक। खुदावंद के पाकला में कुछ यूं मरकूम है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलिम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाईं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर आसपास हमेशा की जिंदगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। थैंक यू अकील साहब। मैं बताना चाहता हूँ कि अकील साहब जो हैं वो ना सिर्फ इस बाइबल स्टडी में मेरी हेल्प कर रहे हैं, और बिहाइंड द कर्टन जो है ना वो साइलेंट सोल्जर होते हैं। तो सारे जो ब्रॉडकास्टिंग का सारा निज़ाम है वो भी यहाँ पर स्टूडियो में संभाला होता है। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस कोरोना वायरस हम ज़्यादा लोगों को इनकरेज नहीं कर पाते, और देयर इज प्लेंटी ऑफ वर्क एंड ही इज़ वर्किंग हार्ड एंड रियली अप्रिशिएट दैट कि जो काम मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं। मैं उसके लिए उनका शुक्र अदा करता हूँ, और यकीनन आप भी इस बात के लिए उनके शुक्रगुजार होंगे। अजीजों, जो सबसे पहली बात जो हम आज इस जजमेंट के हवाले से सीखेंगे, मसीहत में जो खूबसूरती है कि जो इसका ईमान है, जिसको हम क्रीड कहते हैं, और जो निकाया की
کونسل نے یہ جو کریڈ جو ہے اس کو ترتیب دیا، اس عقیدے کو بنایا، اس میں 18 ڈاکٹرنز ہیں، اور یہ کریڈ جو ہے، یہ جو عقیدہ ہے، اس میں ہر ایک جو عقیدہ ہے، ہر ایک جو ایک آپ کہہ لیں کہ اس میں ڈاکٹرن ہے، اس پر بہت ٹائم دیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بڑی سادگی کے ساتھ ان تمام مضامین کو آپ کے ساتھ بانٹوں، کیونکہ مجھے کسی نے کہا کہ جی بھائی صاحب یہ جو مضامین ہیں بہت مشکل مضامین ہیں اور ان پہ بہت سیر اصل جو بحث کی ضرورت ہے اور گفتگو کی ضرورت ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں یہ ضروری ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں، اور اگر ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے تو اس میں یقیناً ٹائم لگتا ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو آمد ثانی کے ساتھ جو سبجیکٹ ہیں جیسے ریولیوشن ہے، ججمنٹ ہے، اور باقی کے جو مضامین ہیں پوسٹ ملینیم، یہ بڑے مشکل جو مضامین ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ضرور آپ کے ساتھ ان کو بانٹوں، اور میں نے کوشش کی کہ جو اس کا انٹروڈکشن تھا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کا، کہ آمد ثانی کیا ہے اور اس کی کیوں ضرورت ہے، اور ہمیں اس کی جو نشانیاں ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت۔ کل ہم نے اس پہ غور کیا تھا کہ سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کی جو سائنز ہیں وہ کیا ہیں۔ So we already discussed about the second coming of Christ, about the signs of second coming, what is the significance of the second coming in the Bible, and why it is so important that Jesus will come back, because he came to this world first time as a babe, and he came to the manger, and we know that incarnation of our Savior Lord Jesus Christ, and he went on the cross and he gave his life, he shed his precious blood on the cross, and then he risen from the dead and he went back to heaven. So why he's coming back, and is that biblical or not? So we already discussed about that. It's not a fiction, it's the reality, because Jesus himself declared that he will come back. And not only after his resurrection, when he went back to heaven, his disciples, they also declared that Jesus Christ will come back. So the church is believing on all these things. So the key beliefs in Christianity, ان میں جو بھی خاص جو ایمان ہے، ان میں سے ایک جو ہمارے ایمان کی جو کنجی ہے، ایک اور جو خوبصورت بات ہے، اٹس اباؤٹ دا ججمنٹ۔ خدا مسیح جب دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والے ہیں، اس سلائیڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کرسچنز بلیو دیٹ گاڈ ہیز آلویز ایگزسٹڈ ایز جج اوور ہز کریشن۔ گاڈ ججمنٹ از اے پروسیس that ends in a decision about whether a person is worthy of his reward, heaven or not, hell. So یہ ایک عدالت کی آپ اس کو کہنے کی ڈسکرپشن جو بیان کی گئی کہ خدا جو ہے، جب مسیحی جو ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور وہ عدالت کرنے کے لیے اپنی کائنات کی، اپنے لوگوں کی عدالت کرنے کے لیے وہ آنے والا ہے۔ خداوند جو ہے وہ ایک ایسا منصف ہے جو کہ ایک عمل کے مطابق، ایک پروسیس کے مطابق جو ہے وہ عدالت کرے گا، اور اس عدالت میں وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کو اس نے سزا دینی ہے، کس کو جزا دینی ہے۔ سو الٹیمیٹلی دا ڈیسیژن از ان دا ہینڈز آف گاڈ۔ وی جسٹ ریڈ فرام دا بک آف دس ڈیوڈ جرمایا that there is some misunderstanding about the judgment of Jesus Christ. آئندہ آنے والے دنوں میں ہم جو مختلف ججمنٹس ہیں، جس میں پارشل ججمنٹ بھی ہے، جن میں جو سیکنڈ کمنگ پہ جو ججمنٹ ہونی ہے وہ ہے، تو مختلف جو ججمنٹس ہیں ان پر ہم غور کریں گے۔ لیکن آج جو بات سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وہی ہے کہ، اور ان کو آپ نوٹ کریں، the first and the important thing is the judgment day is certain. یہ ایک یقینی دن ہے۔ There is no second opinion about the judgment day. In these days, people are talking about this coronavirus, and some people they are saying this is the judgment of God. So there are different views about
this judgment day. But one thing we need to remember, that when we are talking about the judgment day of God, so it's a singular, it's not a plural. अदालत का दिन, एक दिन की बात हो रही है, दिनों की बात नहीं हो रही. So this is very logical, and we need to keep in our mind that I'm not talking about the judgment days, I'm talking about the judgment day. अदालत का एक दिन जो है वो मुकर्रर है. Let's go to the Bible and I will read that Acts chapter 17 verse 3. इमाल उसका 17 बाब और उसकी 3 आयत को हम देखेंगे. Acts chapter 17 verse 3. खुदा के पाक कलाम को देखिए. इमाल उसका 17 बाब और उसकी 3 आयत. और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूं मसीह है. अब यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो वादखाना में था और वो खुदा यीशु मसीह के बारे में जो है उनको सिखा रहा था. उसको दुख सहना और मुर्दों में से जी उठना जो है उसके लिए लाजम था. तो रसूल जो है वो भी इस बात की जो है वो मनावी करते हैं. इब्रानियों के खत का मुसन्निफ जो है हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27. हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27. इब्रानियों उसका 9 बाब उसकी 27 आयत को. और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है. तो यहां पर मैं उस पूरे टेक्स्ट को तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, बिकॉज राइटर ऑफ दिस हिब्रू ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रीस्टहुड ऑफ जीसस क्राइस्ट. वो खुदा मसीह की कहानत के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना जरूर, इस तरह अदालत का होना भी जरूर है. सो दिस इज assured that there will be judgment. Then I'll read that 2 Corinthians chapter 5 verse 10. देखिए अपने बात से तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये बाइबल स्टडी है तो बाइबल स्टडी होनी चाहिए. मेरी अपनी थॉट्स, मेरे अपने ख्यालात जो हैं वो गलत हो सकते हैं, लेकिन खुदावन का पाक कलाम जो है ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है. एंड दिस इज द मोस्ट रिलायबल एंड ऑथेंटिक वर्ड ऑफ गॉड. ये खुदावन की ये मुस्तनद मुंह की बातें हैं, तो इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर उन सब का हाल ज़ाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, खा भले हों खा बुरे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर, इट्स क्रिस्टल क्लियर दैट इट्स वेरी सर्टेन दैट देयर विल बी अ जजमेंट डे. तो इसमें कोई आपको सेकंड ओपिनियन की जरूरत नहीं है. ये बात रोशन की तरह अयान है कि देयर विल बी अ जजमेंट डे. दैट द सेकंड रियलिटी अबाउट द जजमेंट डे इज अबाउट द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट. हु विल बी द जज? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब जब लोग जाते हैं कोर्ट में तो दे समटाइम्स दे आर वेरी क्यूरियस कि जी कौन जज कौन होगा. मैं एक दो दफा कुछ अपने दोस्तों के साथ गया, उनकी हेयरिंग थी, और जब उनके जो सैलम के केसेस थे तो दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट यार जज कौन होएगा, एंड दे आर आस्किंग द बैरिस्टर हु इज द जज, एंड समटाइम बैरिस्टर दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ओह दिस जज इज वेरी गुड, सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, आई नो दिस जज. सो इन द सेम वे, when people are talking about the judgment of God, when they're talking about the judgment day, they start thinking that who will be the judge? कौन अदालत करेगा? अदालत के इख्तियार किसके पास है? There are certain criteria and the requirement of that judge. ये जो जज है उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बहुत जरूरी हैं. When somebody is judging the whole world, वो जो जज है वो किसी का तरफदार नहीं होना चाहिए. वो एक ऐसा मुंसिफ होना चाहिए जो कि
लोगों का इंसाफ जो है वो गैर जानबदारी से कर सके। उसकी एक अपनी प्रोफाइल, एक अपना करैक्टर होना चाहिए कि क्या वो शख्स जो है वो इस काबिल है कि वो दूसरों की अदालत कर सके। बिफोर आई विल रीड दिस टेक्स्ट, I just want to share the couple of things relating to the person of Jesus Christ. You know, when somebody is judging the world, that person himself will be a sinless. उसके अपने अंदर कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। अगर एक जज जो है वो बैठा हुआ है जजमेंट की सीट पे और वो खुद कातिल है, वो खुद मुजरम है, उसके अपनी जात में ऐसी बातें हैं कि वो दूसरों को जज नहीं कर सकता, तो फिर वो कैसे जजमेंट पास करेगा। शायद मीडिया, शायद वकील साहब, वो जिसको वो मुजरम ठहरा रहा है, वही ये कह सकते हैं कि आप तो खुद चोर हैं, आप तो खुद कातिल हैं, आप तो खुद ऐसे हैं, आप मुझ पर कैसे जजमेंट पास कर सकते हैं। तो उसका दामन जो है वो साफ होना चाहिए ताकि वो लोगों को मुजरम ठहरा सके। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट इज a historical, a reliable person who openly declared publicly who can prove sin in my life. तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, जो मुझे गुनहगार ठहरा सकता है। वो अपनी पैदाइश के एतबार से बेगुनाह, वो अपने कामों के एतबार से बेगुनाह। खुदावंद यीशु मसीह की जात दुनिया की वह जात है जो कि मारूसी तौर पर भी और इक्तिसाबी तौर पर भी, अपनी पैदाइश के एतबार से भी, अपने कामों के एतबार से भी वो बेगुनाह है और वो दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाला है। लेट्स गो टू द वर्ड ऑफ गॉड, जॉन चैप्टर 5 वर्स 22। यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 5 बाब और उसकी 22 आयत को मैं आपके लिए तलावत करूंगा। जॉन चैप्टर 5 वर्स 22। That's so beautiful, encouraging. सुनिए गौर से। अब अगर मैं इसको, मेरा दिल कर रहा है कि मैं किस आयत से भी पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। So he got the authority and power to raise the dead because his father gave him such authority. जैसे बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। So not only he got the power to raise the dead, but he got the power to judge the people. और सिर्फ किसने दी उसको ये अथॉरिटी, ये पावर उसके बाप ने। आगे चलकर हम देखते हैं, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप के जिस्म से बेटा इज्जत नहीं करता। बहनों भाइयों, मलाकी की किताब में खुदावंद ने कहते हैं कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है। हम अगर कहते हैं कि हम खुदा की इज्जत करते हैं, अब चूंकि मेरा मजमून है कि मैं सनशिप ऑफ गॉड पर या फादर पर बात करूं, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम पीपल जो शायद इस बात को ना समझ पा रहे हो, उनको मैं समझाना चाहता हूं कि बेटा जो है इसका लुग़वी मतलब है निकला हुआ, कम आउट ऑफ, वो उसमें से निकला है, वो उसकी जात का परताव है, वो और उसका बाप एक है, उनका एसेंस एक है, उनका जौहर एक है, उनके एट्रीब्यूट सेम है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फादर एंड सन। वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14, मैं और मेरा बाप एक है। इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। ये बड़ा खास एक जो अभी जो हमने मैसेज यहां से दिया है, जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिस्म से बेटे इज्जत नहीं करता।
اگر لوگ بیٹے کو نہیں مانتے، عزت چلی نہیں، اچھا جی ہاں جی ہم مانتے تھے، بڑا اچھا نبی تھا جی، بہت وہ چڑیا بنا کے اڑاتا تھا جی، وہ ہاں جی وہ تو مردے زندہ بھی کرتا تھا جی، ٹھیک ہے جی، دیٹس ناٹ انف۔ اگر ہم اس کی عزت نہیں کرتے، عزت کرنے کا مطلب آپ سمجھیں، عزت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پورے طور سے اس کو قبول نہیں کرتے، اگر وہ کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے جی، میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، اور جب آپ پبلک میں جائیں اور لوگ کہیں جی یہ کون ہے جی، تو آپ کہیں پتہ نہیں میں نہیں جانتا جی، آپ شرمائیں اس لیے کہ شاید وہ غریب ہوں، انہیں اچھا لباس نہ پہنا ہو، تو آپ کہیں پتہ نہیں میں نہیں جانتا ان کو، یہ شاید ہوتا میرا نوکر ہے۔ آپ پبلکلی بھی آپ ڈکلیئر کریں گے کہ ہی از مائی ڈیڈ، شی از مائی مام، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے۔ I was so happy when people they were sharing the pictures of their mothers on the Mother's Day۔ اس میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری ایسی خوبصورت مائیں تھیں، بہت سارے ایسی خوبصورت مائیں تھیں جن کے بیٹے اور بیٹیاں ان کی تصویریں اپنے اس فیس بک پیج پہ شیئر کر رہے تھے۔ تو اگر کوئی یہ مانتا ہے، بیٹے کو مانتا ہے، باپ کو مانتا ہے، then they need to declare it publicly کہ he is the son of God، کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی عزت نہیں کرتا، اور باپ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی عدالت کرے، اسے کسی اور نے یہ اختیار نہیں دیا، کسی اس نے نہیں لیا۔ His father gave him such authority and power۔ ہم امال اس کا 7 باپ اور اس کی 31 آیت کو دیکھیں گے جلدی سے۔ میں کوشش کروں گا کہ جلدی سے اس سبجیکٹ کو، کیونکہ بہت سا کام ہے پڑا ہوا کرنے والا، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں آپ کے لیے، اس میں بہت ساری چیزیں ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو پلیز بیئر ود می۔ ایکٹس چیپٹر 7 ورس 31، امال اس کا 7 باپ اور اس کی 31 آیت۔ خدا ان کا پاک کلام دیکھیے، امال اس کا 7 باپ اور اس کی 31 آیت۔ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارے سے تعجب کیا، جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خدا ان کی آواز آئی۔ ایکٹس چیپٹر 7 ورس 31۔ ہاں جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے اس پر نظر کی تو اس نظارے سے تعجب کیا، اور جب دیکھنے کو نزدیک گیا تو خدا ان کی آواز اس کو آئی، اور پھر آگے چل کر کہتا کہ میں تیرے باپ دادا کا خدا، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب موسیٰ کام سے اسے دیکھنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ Moses had that experience of God on that mountain۔ اس کو خداوند کا یہ تجربہ ہوا، وہ خداوند کو جانتا ہے۔ عزیزو، we need to understand the power and the authority of our Savior Lord Jesus Christ۔ He is same yesterday, today and forever۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں تیسری جو اس میں جو اہم بات ہے، تھرڈ، what will happen on the judgment day۔ کیا ہوگا جب عدالت ہوگی، عدالت کے دن ہوگا کیا؟ It will start from the second coming۔ خدا یسوع مسیح جب آئیں گے تو اسی کے ساتھ یہ کام جو ہے یہ کس طریقے سے شروع ہوگا۔ پہلے تو بات یہ، کیونکہ اس لیے میں نے پہلے اس مضمون کو آپ کے ساتھ بانٹا تھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ جب ان کی جو آمد ہے، دوسری آمد ہے، اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ تو پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب اس کی 16 آیت سے، کیونکہ خداوند خود، پھر غور کریں اور فاسٹ میں وغیرہ پڑتا ہے، اسی لیے کہتے جب آپ پڑھتے میڈیٹیٹ کیا کریں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ خداوند خود کسی کو نہیں بھیجے گا، خود وہ خود آئے گا، himself he will come himself، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور پھر آگے چل کر کہتا ہے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بابا پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خدا کا استقبال کریں، اور اس طرح ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ سو دیر از اے سیکوینس، ایک ترتیب ہے۔ خدا مسیح آئیں گے، اور کل میں نرسنگے کی بات جب کر رہا تھا لیکن نرسنگا پھونکا جائے گا، دیر از اے پاور ان دیٹ انسٹرومنٹ، اور جب وہ پھونکا جائے گا، نرسنگا پھونکا جائے گا تو مردے جو ہیں وہ جی اٹھیں گے،
کون جی اٹھیں گے؟ پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آج خدا مسیح آ جاتے ہیں، خدا ہم کرے کہ آ جائیں، اور ہم جو وہ لوگ جو کہ مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان سے پہلے ہرگز آگے نہیں بڑھیں گے۔ پہلے تو خدا ان کو زندہ کرے گا، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں گے اور خدا ان کا استقبال کریں گے۔ اٹس اباؤٹ دا ریپچر، اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ کلیسیا جو ہے وہ کیسے اٹھائی جائے گی، اور یہ بڑا ہی خوبصورت سبجیکٹ ہے، اور آپ ضرور اس کو دیکھیے گا، اس پروگرام کو مس نہ کیجیے گا۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا تسلونیکیوں اس کا پہلا باب، تو یہ آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ کمنگ جب ہوگی تو اس کے بعد یہ سارا سسٹم جو ہے یہ شروع ہوگا۔ دوسرا تسلونیکیوں اس کا پہلا باب، اس کی 7 اور 9 آیت۔ دوسرا تسلونیکیوں اس کا پہلا باب، اس کی 7 آیت سے لے کر 9 آیت تک۔ اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے، جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خدا مسیح کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا۔ وہ خداوند کے چہرے اور اس کی قدرت کے جلال سے دور ہو کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے۔ And he will come, he will give the reward and he will punish the wicked۔ وہ لوگوں کو، خداوند کے برگزیدہ لوگوں کو ریوارڈ دے گا، اور شریروں کو وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا۔ اس میں جو دوسرا فیز ہم دیکھتے ہیں، دوسرا اس کا ایک پہلو جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، نیشن ول گیدر بیفور ہم، قومیں جو ہے وہ اس کے سامنے اکٹھی ہوں گی، اور ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھا ہے کہ تمام قومیں جو ہیں، تمام امتیں جو ہیں وہ اس کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ اور اس کو میں اگر ذرا تھوڑا سا اور ہم اس کو دیکھیں، متی کا انجیلی بیان کا 25 باب، میرے ساتھ دوبارہ اس بات کو دیکھیے، مقدس متی کا انجیلی بیان کا 25 باب، اس کی 31 آیت سے 33 آیت تک۔ جب ابن آدم، پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ کل جو میں بات کر رہا تھا نا، وہ تیری بہن نے پوچھا مولوی صاحب سے کہ جی حضور جو ہے وہ آئیں گے کہ نہیں، خدا مسیح جو ہے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے وہ آئیں گے، تو محمد کیا آئیں گے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ نہیں آئیں گے۔ انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے، وہ تو آگے بس۔ تو خدا مسیح جو ہے ان کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے وہ کیوں آئیں گے۔ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کریں گے، عدالت کے لیے آئیں گے، جزا اور سزا دینے کے لیے وہ آئیں گے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے سن آف مین۔ جب ابن آدم، کیونکہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے، جب ہم سن آف مین کی بات کرتے ہیں، ابن آدم کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسس کرائسٹ از ریپرزینٹنگ آل دی ہیومینٹی۔ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، تب اپنے جلال کے طرف پر بیٹھے گا، اور آگے چل کر اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ہر ایک کو دوسرے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دانے اور بکریوں کو بائیں کھڑا کرے گا۔ جی ہاں، تو یہ ایک کام بھی وہاں پر ہوگا عدالت کے وقت، کہ پہلے چھانٹی ہوگی، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے۔ یاد ہے یہ ہونا جب منادی کرتا تھا تو کہتا اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، تو بھوسے کو جو ہے وہ گندم سے الگ کرے گا۔ دی ارتھ اینڈ اسکائی ول بی ڈسٹرائڈ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیے دوسرا پترس اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیات میں اس لیے آپ کو دیتا ہوں کہ جب کوئی آپ سے بات کرے اور آپ کو بات ایسی کریں کہ جی اچھا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہ کہتے پاجی کے چلے گیا جی، ہے نا۔ بہت دفعہ لوگ میرے سے بات کرتے کہتے ہیں جی وہ بائبل میں یہ لکھا، میں نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا ہاں وہ میں حوالہ مجھے یاد نہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو بائبل کو پڑھنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ سوری، ہاں جی، دوسرا پترس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور جرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پادری مغل نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کہہ رہی ہے کہ جب وہ آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔
ऐसे लोगों को डरा रहे हैं, अजी ये कोरोना वायरस है ना, बस ये समझे भी बस ये तो दुनिया का खत्म हो गया, मामले खत्म हो गया। बाइबल भी कहती है कि जब वो आएगा तो ये चांद, सूरज, सितारे, सब जामे फल जो है वो खत्म हो जाएंगे। जामे फल का समझते हैं, गैलेक्सीज, मून, स्टार्स, ऑल दीज थिंग्स वैनिश्ड, डिस्ट्रॉयड, कुछ नहीं होगा। द अर्थ एंड स्काई विल बी, स्काई का मतलब ये नहीं है कि जो आसमान हमें नजर आता है, वी बिलीव इन द थ्री हेवंस, ये जो हमें नीला सा नजर आता है ना, जो ब्लू हम देखते हैं स्काई, ये जर्रात हैं, जहां तक हमारी आंख काम करती है हम उसको देख सकते, उसके बाद खला है, और फिर जामे फल्क हैं, ऑल द गैलेक्सीज, मून, स्टार्स, सिर्फ एक मून नहीं है, देयर सो मेनी मून, सो मेनी स्टार्स एंड गैलेक्सीज, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। फिर तीसरा जो आसमान है जहां पर खुदाम का तख्त है, किबरिया, ठीक है, और खुदाम का पाक कलाम का किसी आदम की बात करता ही नहीं है। ओनली जीसस, ही वेंट टू दैट थ्रोन एंड ही सिटिंग ऑन द राइट हैंड ऑफ द फादर। कोई नहीं वहां जा सका, सिर्फ यीशु जो है उनके पास, और ये इस जिस्म में कोई नहीं जा सकता। पहला क्रंथियुस उसमें हम देखते हैं कि खून और गोश्त खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। ये जो मरना और फिर जिंदा होना है ना, ये जरूर है कि ये बॉडी बदले, ये जिस्म बदले, और हम खुदा के सामने जो है इस जिस्म में नहीं जाते। वो देखा कि वो आग में आएगा, और उसका वो जिस्म जो है वो आग में तो नहीं रहता, वो तो बदलेगा। और जैसे हम देख एलिया जो आखिरी रात उसको उठा कर ले गए, तो उसका जिस्म जो है बदल गया। इसी तरह खुदावन जो है जब वो आएगा तो वो अपनी कलीसिया को और हमें नया जिस्म मिलेगा, एक जिस्म के साथ नहीं, एक नए जिस्म के साथ। तो खैर अभी हम देखते हैं कि ये जो जामे फल की मैं बात कर रहा हूं कि वो बर्बाद हो जाएंगे और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सूरज, चांद, सितारे, और फिर क्या होगा? द नेशन विल बी जज, कौमें जो है उनकी अदालत जो है वो की जाएगी। रेवलेशन चैप्टर 20 हमने कल उसको पढ़ा था, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है। और लिखा है कि जो उसकी 12-13 आयत हमने पढ़ा था कि तमाम मुर्दे जो हैं वो दे दिए गए, समुद्र ने अपने मुर्दे दे दिए, और छोटे बड़े सब मुर्दे जो हैं वो उसके सामने, खुदा के सामने आए, और किताब खोली गई, किताब हयात खोली गई। जिसका नाम किताब हयात में मिला हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाला गया। जरूर इसको फिर नोट कीजिएगा, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12 to 13। अब बात है कि जी अदालत हो रही है, सब खड़े हैं, तो वहां पर उनको जो है वो रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं, वहां पर सजा दी जा रही है। रोमियो उसका 2 बाब उसकी 6 और 7 आयत को देखेंगे। रोमन चैप्टर 2 वर्स 6 and 7। वो हर एक को उसके कामों के माफिक बदला देगा, जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के ताल्लुक होते हैं उनको हमेशा की जिंदगी देगा। सो देयर विल बी 2 टाइप ऑफ द पीपल, wicked and the blessed. The wicked, they will be judged according to their works, कि जो काम उन्होंने किए हैं उनके मुताबिक उनका इंसाफ है। जो they don't believe in Jesus Christ, जब मैं अभी कल बात करूंगा ना अदालतों की, उस पर हम जरूर इसके बाद में और ज़्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, क्योंकि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। और पनिशमेंट होगी वो जो कि जो खुदा उन पर जो तफक्कुर करते हैं और जो हक को नहीं मानते, नाराजगी को पसंद करते हैं। दूसरा क्रंथियुस उसका 5 बाब और उसकी 10 आयत को फिर मैं एक और दोबारा उसको मैं एलैबोरेट करना चाहूंगा इस बात को। दूसरा क्रंथियुस उसका 5 बाब उसकी 10 आयत। अभी मैंने उसको पढ़ा था, लेकिन मैं दोबारा उसकी तरफ आपको लेकर आया, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते दालत के सामने जाकर, किसके तख्ते दालत के याद रखें। फिर मैंने भी उसी बात पर आपको लेकर आ रहा हूं और मैं इस पर एम्फसिस कर रहा हूं कि इब्ने आदम आएगा, खुदा खुद आएगा मसीह की अदालत के तख्त के सामने, किसके? मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल ज़ाहिर किया जाएगा, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के ज़रिए किए हैं, खा भले हों या खा बुरे। अभी मैंने सिर्फ इसको हाईलाइट करके रखा हुआ था, मैं उसमें दोबारा उस बात पर जाना चाहता हूं। The judgment seat of Christ is not about the judgment for your sin. हमारे जो गुनाह है
खुदावंद यीशु मसीह ने उनको उठा लिया है, उनकी कीमत अदा कर दी है। The Bible tells us that judgment already took place at the cross of Jesus Christ. There is nothing anyone can ever do to you about your sin. अब कोई आपकी अदालत नहीं कर सकता कि जी आप गुनहगार हैं मैं आपको सजा दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी कीमत अदा कर दी है एंड वी बिकेम राइचस। राइचस के लिए मैं बात करता हूँ ना, कि मैं इसको जरा पढ़ लूँ फिर मैं करता हूँ। बिकॉज गॉड डिड इट टू हिज सन इन योर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे उसने वो सजा जो अपने जिस्म पर ले ली है। क्राइस्ट वॉज कंडेम्ड फॉर अस, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। Christ was condemned for us. That is what we read in Galatians chapter 1 verse 4, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil age. He justified us. उसने हमें रास्तबाज ठहरा दिया। We are being justified by the precious blood of our Savior Lord Jesus Christ. हमें उसने रास्तबाज ठहरा दिया है। अब किसी और कुर्बानी की जरूरत नहीं है, अब कोई और जजमेंट हमारे पे नहीं है। खुदावंद ने हमारी कीमत अदा कर दी है और इसलिए अब कोई हमें जज नहीं कर सकता। लेकिन जो उसकी कुर्बानी को नहीं मानते, जो बेटे को नहीं चूमते, जो बेटे की इज्जत नहीं करते, जो बाप की इज्जत नहीं करते, उन पर सजा का हुक्म हो चुका। और मैं इस काफी आयत के साथ इस बात को खत्म करूंगा और फिर हम कल अदालत के जो मुख्तलिफ अदालतें हैं उनके बारे में हम गौर करेंगे। सिर्फ एक अदालत नहीं, बहुत सारी उसके बारे में हम बात करेंगे और जरूर इसको प्रोग्राम को देखते रहिए। हाँ जी सुनिए, यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा को हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है, कंडीशन है, जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। इट्स अ गुड न्यूज, वेरी सिंपल। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, जस्ट बिलीव ऑन हिम। सिर्फ उस पर ईमान रखें, उसके लिए आपको कुछ अदा करने की जरूरत नहीं है, कोई रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, एक टांग पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, सर के बालों को बांधने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है कि मेरी नमाज जो है कज़ा हो रही है, मेरे रोजे कज़ा हो रहे हैं। सिर्फ उस पर ईमान रखें। और ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है। सिर्फ ये ईमान रखें कि यीशु ने आपके और मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी है और आप बच जाएंगे अब्दी हलाकत से। कोई नहीं आपको बचा सकता मां सिवाय यीशु और मसीह के। उस पर ईमान ले आए। और जिसको लिखा है जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा का हुक्म यह है, इस वक्त से है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। अगर आप उस पर ईमान लाएंगे तो अजीजों आप जिंदगी पाएंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है। एंड टाइम, हाउ क्लोज वी आर, कितना हम इसके करीब हैं उस अदालत के, उस आखिरी वक्त के। आर यू प्रिपेयर फॉर द जजमेंट? क्या आप उस अदालत के लिए तैयार हैं? इस दुनिया में अगर आप खुदा न खास्ता किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, आपको लेटर आता है कि फलां डेट पे आपने कोर्ट में आना है, आप अपनी डायरी में नोट करते हैं, अपने अजीजों दोस्तों को बताते हैं यार वो फलां दिन मेरी अदालत है, फलां दिन मैंने जाना है, कोर्ट हेयरिंग है। आप बड़े परेशान होते हैं और उसको ज़हन में रखते हैं कि यार मेरी हेयरिंग मिस ना हो जाए। क्या आप उस अदालत के लिए जो कि लाजम है, होनी है, सर्चन है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? इसको खाम ख्याली में ना ले, इसको ये ना सोचेगा हाँ बस वो ऐसे पार्टियों में शुरू किया हुआ है। व्हाट हैपन व्हेन यू डाई? इट्स श्योर, हम सब मौत की जानब बढ़ रहे हैं। ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। जैसे एक दिन मौत का मुकर्रर है, इसी तरह अदालत का भी एक दिन मुकर्रर है। व्हाट
happens to believer at the judgment. मैंने भी शेयर किया है उस अदालत में ईमानदारों के साथ क्या होगा. What is our final destination, place? वो जगह जो खुदावन ने हमारे लिए तैयार की है, न्यू हेवन न्यू अर्थ, जहां पर हम देखेंगे कि जो बर्रा है और जो शेर है वो दोनों वहां पर इकट्ठे रहेंगे. हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन अदालत करने के लिए आने वाला है. उसका असा उसके हाथ में है. अजीजों, वो दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाला है. There is no escape. बच नहीं सकेंगे. प्यार है. He is coming soon. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू दुनिया की अदालत करने के लिए आने वाला है. खुदावन तो हमें इस सारी सोच से निकाल, गलतफहमी से निकाल कि फिर खुदावन जो लोग ये समझते हैं कि अदालत नहीं होगी, वो लोग जो कि अभी तक तैयार नहीं है, जिन्हें तुझे कबूल नहीं किया, जिनके दिल अबलीस ने सख्त किए हुए हैं, जिनकी आंखें अबलीस ने बंद की हुई हैं, जिनके कान अबलीस ने बंद किए हुए हैं, जिनके जहन अबलीस ने बंद किए हुए हैं, तेरे यीशु नाम में दुआ करता है खुदा, तुम उनके जहनों को खोल दे, उनके कानों को खोल दे, उनकी आंखों को खोल दे, उनके दिलों को तैयार कर, ताकि तुझे अपना मुनज्जी और निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि तेरे तख्ते अदालत के सामने शर्मिंदा ना हो, तुझे धन्यवाद कहें और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें. तेरा खुदावन, मैं तेरा अबर उन पर चाहता हूं, तेरे पाक उनकी मामूरी चाहता हूं. खुदा तू बड़ी बरकत दे, क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे. बड़ी बरकत देना. प्यारे खुदावन, आइंदा के सारे प्रोग्राम्स को भी तेरे हाथों में देते हैं. प्यारे यीशु जी, दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो कि घरों में हैं, अस्पतालों में हैं. प्यारे खुदावन, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. खुदावन, मैं इस वक्त अपने तमाम बुजुर्गों को, खासतौर अपनी कलीसिया के बुजुर्गों को तेरे हाथों में देता हूँ. मिसेस बरकत के लिए, मिसेस सिंह के लिए, डेरिक और डेबी के लिए और दीगर तमाम बहनों भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, एक एक शख्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. खुदा, इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं. आलम की सतह पर जो एक वबा है, कोरोना वायरस है, तेरे यीशु नाम में सारी आलूदगी, सारी वबा जाती रहे और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए. लोग तेरी तरफ रुजू करें. तेरे लहू में कुदरत और ताकत है. एक एक बदन और जान को तेरे पाक खून में छुपाते हैं. बड़ी बरकत दे यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन. खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा फरमाए. खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा. और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दस के साथ रहे. आमीन. जी बहन भाइयों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए. आपको ये बाइबल स्टडी कैसी लगी, हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा. और एक सिलसिला जो आज मेरे जहन में आया और मैं ज़रूर चाहता हूँ कि इसको हम आइंदा भी इसको इसी तरीके से जारी सारी रखेंगे. अगर आपकी बर्थडे होती है, वेडिंग एनिवर्सरी है, कुछ भी है, तो आप मुझे ज़रूर टेक्स्ट कर दिया करें और बता दिया करें ताकि हम आपको विश कर सकें. आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं मीर के लिए, मीर कमर के लिए. उनकी आज बर्थडे है, हम उन्हें हैप्पी बर्थडे कहते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें अपनी पनाह में रखे. और भी किसी की बर्थडे है और फेसबुक पे तो बहुत ज़्यादा नाम मेरे पास आ जाते हैं और हम उनको विश भी करते हैं. तो आपकी अगर बर्थडे है, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं. तो मैं इससे पहले कि प्रोग्राम को ख़त्म करूँ, मैं अपनी इसलिए दुआ करना चाहूँगा और उसके पेरेंट्स के लिए, दीगर सारे खानदान के लिए. तो अगर आपकी बर्थडे है तो भी मुझे टेक्स्ट आप करें ताकि मैं आपकी भी जो है उसको सेलिब्रेट कर सकूँ बर्थडे को और आपके लिए दुआ कर सकूँ. तो आइए हम दुआ करें और खुदा की बरकत चाहें. खुदा पाक, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा मुहाफ़िज़ निगहबान है. खुदा तू ज़िंदगी का सचश्मा है. खुदा हम इस वक्त दुआ करते हैं मीर के लिए. क्या खुदा तू उस बेटे के साथ हो, उससे उम्र की दराजी ता फरमा, कुव्वत से तनसी बख्श, उसके पेरेंट्स के साथ हो और सारे ख़ानदान को, दीगर भाइयों के लिए
तेरी बरकत चाहता हूँ। और भी जितने लोग हैं खुदावन सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को या खुदावन बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन सब के लिए खुदा मैं तेरी बरकत चाहता हूँ, सबके साथ हो यीशु के कारण नाम में, आमीन। जी मेरे भाइयों, खुद भी देखिए और दूसरों को बताइए, बाइबल टीवी ग्लोबल को देखते रहें, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू।